वो 11:20 को ज्वाइन करेंगे सर. Yes, yes, sir. Yes, sir. We are going to start this one, sir. Okay. This session. Good morning, participants. Welcome for this beautiful session. On behalf of Youth Ministry of Youth Affairs and Sports, Hello India, and Sai LNCP, I welcome you all for this beautiful session. Today we have a special guest and a great speaker, a very renowned person with us, that is Shri Sujit Panigrahi, CEO Fitness 365. About him, before welcoming him, I want to read about his great achievements. Sujit Panigrahi sir has 25 years experience in sports, physical education, and technology. His company Fitness 365 is India's largest fitness assessment company. It also manages Hello India Fitness Assessment for school-going children and Swasth Bachche Swasth Bharat program of Kendriya Vidyalaya Sangathan and an integral part of Fit India movement. Sujit is GC member at Sports Skill Council India and member of CBSE NCERT Curriculum Committee. He was the additional DG in technology for Commonwealth Games, which held at Delhi during 2010. He is a graduate and a postgraduate from BITS Lani. And sir, today he is here with us to share a greater knowledge on topic integrating fitness in PE program, progressive curriculum for uh, 12 classes. Sir, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Hello India, on behalf of Principal and Sai LNCP, I welcome you for this beautiful session. Sir, you are a renowned person, very familiar with this technology and the fitness, uh, Fit India movement. Uh, uh, Definitely, I can promise that all our participants will carry a greater knowledge from your side. So eagerly, even our participants are waiting for your speech, sir. I request you to take this session, yes, sir. Over to Sujit, sir. Thank you. Thank you so much, Dr. Sanjeev Patil. I mean, this is the fifth batch that we are doing it all together. Yes, so I would like to express my gratitude to Ministry of Youth Affairs and Sports, Sports Authority of India, Sai LNCP Trivandrum, and especially to Dr. G. Kishore sir and to Dr. Usha ma'am for taking the lead in creating the PN community coaching program, which has been of immense value to more than 22,000 people have so far attended the program in the previous 4 batches. And Dr. Patil, you have been an integral part in anchoring many of the sessions. So it has been a pleasure working with you, sir. I would like to, last week we had Mr. Rohit Khanna, CEO of Fit India, talking about the importance of fitness. And also he talked about the whole school approach to fitness, where we are looking at making schools fitter, whether it is the school, whether it is PE teachers, subject teachers, or children, or extending it to parents also. So how do you create a culture of fitness? So this is what they talked about. They talked about how you can become Fit India schools. So today we are going to talk about that as physical education teacher. The core of physical education is teaching, right? And also teaching values to children. So we are also going to talk about that when you're taking a physical education classes, how do you integrate fitness in your physical education program? So that's a topic that I'm going to take today. So later I'm going to join by Dr. P.S. Dara. He is the head of sports from KIIT International School. I had the pleasure of working with him at Kendriya Vidyalaya Sangathan. He's going to join after 20-30 minutes. So before starting, even I welcome P.S. Dhara sir in this session. Within a few minutes, even he is going to join participants. So even the greater knowledge can be shared. It is shared by P.S. Dhara sir also, please. Right.
So there are almost like 1,000 participants already. So what we are going to talk about that how do you integrate fitness in the physical education program schools, and also a structure for progressive curriculum for nursery to 12th. So day after tomorrow on 27th and on 29th, we are going to have exclusive sessions on nursery to 5th and 6 to 12. So those would be taken Dr. Ajit, Dr. Virendra Chanjeria, and Dr. Sanjay Prajapati. They will take it over 2 days. So we'll have a detailed session also. Today I'm going to give you an overview of what are the goals of physical education. From a curricular expectation point of view, as teachers and learners, there are 10 key goals which are there. The first goal of a good physical education program is to have healthy living responsibilities. Basically, as physical education teacher, we should be promoting how do you have individual and collective responsibility for healthy living, whether it is at home, school, or community, build a culture of healthy living. So that's the first goal that we need to talk about. The second goal that we are talking about is basically about from a curricular expectation, because when you're talking about a subject, it needs to have a curriculum structure. The second aspect is yoga. India has been a pioneer in promoting yoga. So what we are looking at is how yogic practices to promote concentration, peace, self-control, relaxation. So basically helping yoga to help you deal with fatigue, stress, strain, and all that. The next aspect is about lifestyle. Here we are looking at lifestyle per se in terms of whether it is you are standing, walking, running, sitting, sleeping, postural defects. So we are looking at a healthy lifestyle as one of the main aspects of this curriculum. The next aspect of the curriculum is physical and mental fitness. So here we are looking at improving the neuromuscular coordination, getting children to do a variety of sports, whether it is children or adults. It is basically about mental and physical fitness, where you do a set of activities in order to improve your neuromuscular coordination. The next aspect, the fifth aspect, is about safe practices. Here we are looking at, so when you are playing, you play by the rules. Rules of safety is a very important thing. You need to make sure that you are playing in a very safe way. And how do you, when you're playing team games, when you're playing combat sports, how do you make sure that you're following safe practices? So that's the fifth aspect. The next aspect is excellence in sports. So here, since we talked about excellence in sports is a very important aspect where you're striving for it, games and sports. When you're looking at games and sports, that's a very important aspect, that where on one side we're talking about involvement of every child. On the other side, we also talk about excellence. So we need to have two different aspects. Neuromuscular coordination, we talked about it, participation through a variety of activities. We're talking about psychosocial skills. Basically, it's very important that if you have to survive in a society, you need to have team skills like teamwork, collaboration, competitiveness, respect, trust. All of this, I mean, or dealing with success, dealing with failure. There are a lot of values which are there, a lot of social aspects when you're dealing with. So when you're playing as two different teams or two different individuals, you also deal with all of this. Whether it is at school, home, and community, you learn a lot of skills which are of value to you in your normal life. Social and moral values. So essentially, we are looking at whether it is through games, sports, NCC, Red Cross, Scout and Guide, also develop a lot of social and moral values. The next aspect, the last aspect that we are talking about is making sure that every child counts. Make sure that every child, irrespective of their abilities, whether they are normally abled or differently abled, you should be able to include all of them in a physical education program. So physical and psychosocial needs of differently abled children also needs to be integrated in the program. तो ये बहुत important है. ये 10 चीजों की हमने बात किया. Health and healthy living, yoga, safe practices की बात की हमने. Physical और mental fitness, lifestyle, excellence in sports की बात की हमने. Inclusive education, social और moral value और psychosocial skills की हमने बात की. ये सारे हो गए कि अगर आप teacher और learner है, आपकी expectation होना चाहिए. ये दूसरा एस्पेक्ट है. अगर हम फिजिकल एजुकेशन को हम चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश की तरह कोई सब्जेक्ट बने,
तो उसके लिए उसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि हेल्थ एंड पी जो है इट्स नॉट मियरली एन इंस्ट्रक्टिव एरिया। हेल्थ एंड पी जो है ये इसकी अपनी अपनी खुद की करिकुलम है। सेकेंड एस्पेक्ट है कंटेंट ड्रॉन फ्रॉम अदर करिकुलम एरियाज। जैसे अगर हमें मैथमेटिक्स सिखाना है, साइंस सिखाना है, सोशल साइंस है, ये सारी चीजें हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू सिखा सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू भी हम वो सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। तो दोनों दोनों एक दूसरे के साथ लिंकेजेस है। सो कंटेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अदर करिकुलम एरियाज। अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं, मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर बीएमआई की बात कर रहे हैं, ये सारे अलग सब्जेक्ट से ड्रॉन है। अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो स्कोर इज आल्सो मैथमेटिक्स। सो एवरीथिंग, सो ये कंटेंट जो है बाकी करिकुलम सब्जेक्ट से भी है। क्या इसकी अपनी कंटेंट है? यस, दिस सब्जेक्ट हैज इट्स ओन कोर कंटेंट एंड देयरफॉर नीड्स टू बी ट्रीटेड एट पार विद अदर सब्जेक्ट्स। फिजिकल एजुकेशन जो है उसकी खुद की कंटेंट है। तो आप नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का एक्सक्लूसिव करिकुलम बना सकते हैं। तो ब्रॉडली हेल्थ एंड पी खाली इंस्ट्रक्शन नहीं है, उसमें दोनों है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। कंटेंट दूसरे करिकुलम सब्जेक्ट से है, अपनी कोर रही और इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटीज है, वाइस वर्सा, मैथ्स को स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स को मैथ्स के साथ। So English, social science, science, mathematics, everything can be integrated. So broadly अगर हम देखा जाए, so it should be treated as a core subject. ये compulsory subject होना चाहिए up to secondary and optional subject होना चाहिए higher secondary stage में. Focus has to be on health, skill and physical well-being. वो होना चाहिए. And practical engagement क्या क्या हो सकता है? Play हो सकता है, exercises होते हैं, sports हो सकता है, yoga हो सकता है, and personal and community hygiene के practices भी कर सकते हैं. It needs to have a need-based approach. Depending on the school का क्या environment में हम इसको need-based approach follow कर सकते हैं. Important क्या है? जब हम when we go to school, बच्चे जब सुबह बैग अपने बस स्टॉप में जाते हैं, वो कभी नहीं बोलते हैं कि मैं क्लास जा रहा हूँ, वो कहते हैं हम स्कूल जा रहे हैं. तो अगर मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग स्कूल जाते हैं, वो कहते हैं हम स्कूल जा रहे हैं. So which basically means that every area of a school is learning for them. उसमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है. क्लासरूम है, क्लासरूम के बाहर लाइब्रेरी है, आर्ट रूम है, स्पोर्ट्स रूम है, कॉरिडोर्स है, उसमें झूले लगे हुए हैं, प्लेग्राउंड्स हैं. तो एवरी एरिया ऑफ ए रूम ऑफ अ स्कूल इज एजुकेशन का स्पेस. सो इम्पोर्टेंट है एजुकेशन इन द क्लासरूम प्लस एजुकेशन ऑन द ग्राउंड, ऑन द प्लेग्राउंड. ये दोनों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है. सो वी गो टू अ स्कूल टू लर्न. तो बच्चों के लिए वो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए. So what are the goals of a physical education program? अगर नर्सरी टू 12th की हम बात कर रहे हैं तो हमारे 7 गोल. Participants, there is a slight network issues. Please be with us. Sir will join within few seconds. Yeah, he has joined. Yeah. हेलो सर, मैं Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था. कहाँ पे? Maybe no problem. Now only. कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था? Now only. Just now, sir. No problem. You can continue with the same slide, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Slide is not visible. Now it is, sir. Okay, sir. Yes, yes, sir. तो फिर सर आपके पीछे से शायद नॉइज आ रहा है किसी के. One slide is. ओके. तो एक सर कहीं से ना पीछे से आवाज आ रहा है सर, वॉइस. Yes, sir. Yes, sir. Oh, thank you. So goal of physical education program nursery to class 12 का जो goals हैं, typically first thing is goal जो है is to teach a range of movement skills. Movement skill क्या होते हैं? Running, jumping, hopping, skipping, ये सारी चीजें जो हैं किसी भी स्पोर्ट में जरूरत है, नॉर्मल लाइफ में भी जरूरत है. मेरे को वॉक करना है, रन करना है, बैठना है, तो मेरे को एक रेंज ऑफ मूवमेंट स्किल्स होना बहुत जरूरी है. तो ये सबसे पहला गोल है कि बच्चे जो है whether they are able to walk on a straight line, whether they are able to jump, whether they are able to throw, टारगेट कर पा रहे हैं. तो बेसिक गोल है कि acquire a range of movement skills जिनमें रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, स्किपिंग, बैलेंसिंग,
तो ये लैंडिंग, ये सारे जो बेसिक स्किल्स है ये सब पता होना चाहिए। सेकंड गोल है अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दिस मूवमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज इन फिजिकल एक्टिविटीज। जो हम सीखते हैं, अगर हम रनिंग लाइक ए स्नेक करके एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो स्नेक की तरह अगर हम भाग रहे हैं तो उसमें मूवमेंट का स्किल होता है कि रनिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, उसको हम चेंज करके जिगजैग रनिंग कर रहे हैं। कल अगर मैं एक फुटबॉल दे देता हूँ तो उसमें ड्रिबलिंग सीख सकते हैं, अगर मैं बास्केटबॉल देता हूँ तो उसमें ड्रिबलिंग वो सीख सकते हैं। अगर दो कोन्स दोनों एंड में है तो मैं जाके वहां जाके भाग के लौट के आ रहा हूँ, एजिलिटी तो सीख ही रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं रनिंग बिटवीन द विकेट भी सीख रहा हूँ। सेकेंड गोल वही है, टू अप्लाई द मूवमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड गोल क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिजिकल एक्टिविटी हो, डेली एक्टिविटी हो, जो रोज की एक्टिविटीज हैं, अपने बीच में हो या किसी और के साथ हो, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है पॉजिटिव पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर। तो ये बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव इतना हो जाते हैं कि वो हारना वो डील ही नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उसमें लड़ाई हो जाती है, काफी कुछ होता है। बट अगर गुड सोशल बिहेवियर ये है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव बन रहे हो, आप एक्सेलेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि आप पर्सनली कितना इंप्रूव कर रहे हो। वो इम्पोर्टेंट है कि आप पर्सनली कितना इंप्रूव कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली थिंकिंग टू मच अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। सो इट्स बेसिकली अबाउट एंड आल्सो मेकिंग श्योर दैट देयर इज रिस्पेक्ट, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। अगर आपकी कोचेस है, टीचर्स है, आप उनके साथ अच्छे बिहेवियर हो और पेरेंट्स के साथ भी हो। फिफ्थ गोल जो है इज टू मेंटेन हेल्थ एनहांसिंग फिटनेस थ्रू रेगुलर पार्टिसिपेशन। फिटनेस जो है, फिटनेस हैज टू लीड टू बेटर हेल्थ। तो ये हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो फिफ्थ गोल वो है। सिक्स्थ इज टू एंजॉय एंड वैल्यू द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ फिजिकली एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। तो जो भी हमारा हम फिजिकली एक्टिव और हेल्दी लाइफ ये कर सकते हैं, उसको हम एंजॉय करें। एंड इसको जब भी हम मौका मिले हम खेलें, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस करें, कुछ एंगेजमेंट हो, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग बोर्ड गेम्स। इफ यू आर प्लेइंग, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है तो आप जाके बाहर बच्चों के साथ नॉर्मली भी कर सकते हो। अगर फैमिली आउटिंग है, गो टू अ पार्क, फ्रिस्बी, उसमें आपको बॉन्डिंग भी अच्छा होता है। सेवेंथ गोल है is to support and encourage those who excel in sports. सब कुछ ठीक है, बट उसके साथ साथ जो भी एक्सेलेंट, अगर स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 1000 में से अगर 50 बच्चे अच्छे कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, उनको आपको बढ़ावा देना चाहिए। ये सेवेंथ गोल है। अगर मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, इट्स टू एनेबल स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिविजुअली एंड विद फिजिकल स्किल्स प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूज। इसमें लाइफ टाइम गोल्स जो है एक्टिव और हेल्थी लिविंग का है, उसमें फिजिकल स्किल्स की इंप्रूवमेंट है, आप उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये आप इंडिविजुअली और बाकी सबके साथ जो आपकी बिहेवियर है और आपकी एंगेजमेंट है वो होना चाहिए। तीन मेजर आउटकम्स है। वन इज फिटनेस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसमें हर बच्चे का पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉडिफाइड स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, और अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज हो। जॉयफुल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल स्किल्स ऑफ फिटनेस फॉर ऑल। स्पोर्ट्स परस्यूट मतलब बच्चों को एक वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स खेलना चाहिए बेस्ड ऑन देयर उनकी जो चॉइस और उनकी एबिलिटी के ऊपर, और स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो खेल पाए। एंड कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स में टैलेंट है वो उनके लिए स्पेशलाइजेशन है। और थर्ड एस्पेक्ट है स्पोर्टिंग एक्सेलेंस की पाथवे। जो बच्चे अच्छे खेलते हैं उनके लिए एडिशनल टाइम और उसको हम पीरियडाइजेशन करें, उनको अच्छे जो स्पोर्ट्स खेल पा रहे हैं। अगर हम ब्रॉडली उसको लेआउट करें एज अ प्रोग्राम, सो ये प्रोग्राम है जिसमें फिटनेस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल हो, स्पोर्ट्स परस्यूट एंड स्पोर्टिंग एक्सेलेंस की पाथवेज है। अगर प्री नर्सरी टू क्लास 3 के ऊपर बात करें तो मोस्टली हम मूवमेंट एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक्विजिशन ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स हो, जिसमें बॉडी स्पेस एंड एफर्ट अवेयरनेस हो, जिसमें बच्चे जो हैं वो जो है वो अपने बॉडी को समझे। और अगर स्पेस को कैसे समझेंगे, अगर मुझे कहूंगा कि स्टैंड इनसाइड अ सर्कल और आउटसाइड अ सर्कल, सो आई नो व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज आउटसाइड, व्हाट इज बियॉन्ड,
लाइन के ऊपर खड़ा होना. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ओरिएंटेशन दिस थिंग. मैं कहूंगा थ्रो एट द टारगेट. तो हमको पता है नहीं टारगेट क्या है. आपको डिस्टेंस भी आपको पता होता है कि 2 मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है, तो स्पेस की अवेयरनेस उसमें होता है. एफर्ट अवेयरनेस है कि मेरे को अगर दूर फेंकना है, सो आई नीड टू पुट मोर एफर्ट. अगर मेरे को जैवलिन फेंकना है या बॉल फेंकना है, तो मेरे को एफर्ट, तो मेरे को पता होना चाहिए अंदाजन कितना कितना एफर्ट लगेगा टू डू सर्टेन थिंग. emphasis on learning and enjoyment through developmentally appropriate. तो एज ग्रुप के हिसाब से जो मूवमेंट एक्सपीरियंसेस वो सारे होने चाहिए और जनरल फिटनेस होनी चाहिए क्लास 3 तक. क्लास 4 से 8 जो है इसमें ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट की बात करें, इसका मतलब है कि ओवरऑल स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स फिटनेस की एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के थ्रू मैं स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स को सीखूं एंड वेराइटी ऑफ फिजिकल और स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के ऊपर करूं, जिसमें फन भी हो, इंक्लूसिवनेस हो और सेफ प्रैक्टिसेस जो हमने बात किया, और कोर वैल्यूज रिस्पेक्ट, रिस्पांसिबिलिटी, रेजिलियंस और केयर हो, इंटीग्रिटी होनी चाहिए. जो भी हम कर रहे हैं उसमें झूठ ना बोल रहे हैं, उसमें हम रूल्स के हिसाब से खेल रहे हैं और हार होना चाहिए. फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल में जो बच्चे फिर क्लास 9 to 10 और 11 to 12 की बात कर रहे हैं, 9th और 10th में हम कुछ बच्चे जो होंगे जो अच्छे स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, हम उनको कंपटीशन और उसके तरफ हम ध्यान दें, उनकी मेंटल स्किल्स और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस की बात करें. और भी अच्छे खेलेंगे 11th और 12 में, तो उनको स्पेशलाइजेशन करें एक दो स्पोर्ट्स में. और कुछ होंगे जो हाई परफॉर्मेंस में भी चले आएंगे स्पोर्टिंग एक्सीलेंस. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से. लेकिन हर बच्चा जो है, लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12 तक का हर बच्चा जो है ये रिक्रिएशनल पार्टिसिपेशन है, फिजिकल एक्टिविटी हो, फिटनेस की स्किल्स हो, फिट ट्रेनिंग से प्रैक्टिस है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस हो, स्किल रिलेटेड फिटनेस हो, हर बच्चे को होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे. सो ये 3 मेन आउटकम्स है फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स परसूट और स्पोर्टिंग एक्सीलेंस की बात करें. तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो समझ में आता है, स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के ऊपर वो ध्यान देते हैं ज्यादा, जिसमें हम ये स्पोर्टिंग एक्सीलेंस पे ये हम समझ. सेकेंड है फिटनेस फॉर लाइफ, हमने डिस्कस किया. एक्टिव लाइफस्टाइल हमने डिस्कस किया. स्पोर्ट्स फॉर लाइफ किया. और ये सब कराने के लिए तो जो WHO की रिकमेंडेशन है या फिट इंडिया का रिकमेंडेशन है कि हर बच्चे को 60 मिनट्स खेलना चाहिए. 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए. द मूवमेंट स्कूल, टीम गेम्स, कंपटीशन और कोलैबोरेशन, ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. हर बच्चा जो है, अगर हम बच्चों को पूछें तो हर बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे और 5 मिनट खेलना है. तो सो लेट अस सी दिस लिटिल वीडियो व्हिच इज वेरी नाइस वीडियो. एक बार देखिए. Their voice is a, we can't hear that video sound. The voice is not audible, sir, of that video. Sorry, The voice is not audible. वॉइस ऑडिबल नहीं था. नहीं, no, sir. ओह, आई एम सो सॉरी. ओह सॉरी, आई थिंक वो जो शेयरिंग में ना, शेयरिंग में शायद वो चला गया. वो तो अभी चलाऊं कि छोड़ दूं? Please, sir, please, once again, let them understand. ओके. Sorry, participants.
कि मम्मी 5 मिनट प्लीज। हो धूप खड़ी है सर पे तो क्या हम जल जल के खेलेंगे, धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस 5 मिनट ओके, बस 5 मिनट और जो ठाना है उसे पाना है, चलो चलो तेरे खुद को बनाना है, धूल पसीना मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस आइए इन्हें खेलने देते हैं, ये आज और खेलेंगे तो कल और जीतेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जहां इंडिया के हजारों युवा एथलीट्स खेलेंगे टू बी द बेस्ट। मिट्टी मिट्टी हम तो सब कुछ झेलेंगे। बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट आओ खेले भी। खेलो इंडिया। हर बच्चे से अगर पूछें तो हर बच्चा चाहता है कि और 5 मिनट खेलें। तो सो एवरी चाइल्ड वांट्स कि और थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाए। तो क्लासरूम के अंदर भी अगर टीचर 2 क्लास के बीच में ब्रेक भी होता है तो बच्चे खेलना चाहते हैं। तो बच्चों के अंदर जो है एक नेचुरल इंक्लिनेशन है स्पोर्ट्स के लिए। तो हमें उस चीज को चैनलाइज करना है कि हम कैसे हम आज ये देखेंगे 60 मिनट्स को हम कैसे ऑप्टिमली हम करा सकते हैं। तो कोई भी पी पीरियड हो तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो जो भी हम कराते हैं तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए इन द सेंस कि वो मस्ती होना चाहिए, उसमें एंगेजिंग होना चाहिए जिसमें हर बच्चा वो खेल पाए, और इंटरेक्टिव और डायनेमिक होना चाहिए। अगर हम सेम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है, तो हर एक्टिविटी के वेरिएशंस होना बहुत जरूरी है। प्लेफुल लर्निंग क्या होता है? प्लेफुल लर्निंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक पहला वाला हो गया फ्री प्ले। फ्री मतलब बच्चों के ऊपर आपने छोड़ दिया कि बच्चों को जो मर्जी वो करे, तो वो होता है फ्री प्ले, जिसको हम चाइल्ड लेड कहते हैं। सेकंड होगा गाइडेड प्ले, जिसमें कोई ना कोई पेरेंट या टीचर है, वो देख रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, बच्चे खुद ही अपना रूल्स बना रहे हैं, अपने आप ही खेल रहे हैं। थर्ड हो गया जिसको हम कहते हैं गेम्स। गेम्स मतलब कि उसमें एडल्ट ने डिजाइन किया, मतलब पी टीचर या स्पोर्ट्स कोच या अथॉरिटी ने किसी ने डिजाइन किया, और उसमें रूल्स और कॉन्स्टेंट्स है खेलने के लिए। जैसे हम गली क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल गेम ना हो लेकिन उसके रूल्स है, कुछ ना कुछ रूल्स है, उसके कॉन्स्टेंट्स है कि आपको लेफ्ट की तरफ नहीं मारना चाहिए, नहीं तो कांच टूट जाएगा। तो आप हो सकता है कि तो उसमें से तो गेम्स और स्पोर्ट्स में ये बहुत बड़ा अंतर है कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें बड़ा डिफाइंड रूल्स है, और गेम्स हम वेरिएशंस हैं, मतलब कि स्पोर्ट्स के हो सकते हैं या कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एडल्ट डिजाइन एंड कंट्रोल्ड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें हम क्लियर कॉन्स्टेंट्स हैं एक्टिविटी के लिए। ये तो प्लेफुल लर्निंग का ये पूरा ही स्पेक्ट्रम है, फ्रॉम चाइल्ड लेड टू एडल्ट मॉनिटर्ड, कि एडल्ट ने डिजाइन किया और फाइनली उसको कंट्रोल किया है एडल्ट, जिसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है। सो दिस इज अ कंटिन्यू प्लेफुल लर्निंग। आप इसके बीच में सारे एक्टिविटीज इसी के बीच में फिट होता है जो फिजिकल एजुकेशन करिकुलम की बात करते हैं। रिलेशनशिप क्या है प्ले एंड लर्निंग के बीच में? जैसे ये देख सकते हैं, स्कूल है दिल्ली में, एक स्कूल जहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चिल्ड्रन आर फिजिकली, जो बच्चे जो जिस दिन पी पीरियड होता है उस दिन बच्चे छुट्टी नहीं लेते। तो फिजिकली एक्टिव क्लासेस जो है इजियर भी होता है मैनेज करना, और स्कूल में जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है, पी की क्लासेस होते हैं, तो अटेंडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाता है, स्कूल का कंप्लीशन रेट भी बढ़ जाता है, ओवरऑल स्कूल की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है, बिकॉज उसमें मेंटल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है स्पोर्ट्स में बहुत डेवलप होता है। तो बच्चे खेलते हैं तो उनका ब्रेन वर्क्स फास्टर, उससे ब्लड के सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल्स आल्सो हुआ। स्कूल्स में कांस्टेंट क्या है, एक छोटी सी जो मैं एग्जांपल देता हूँ, प्ले और क्लास में क्या डिफरेंस क्या है। अगर हम कोई प्ले करते हैं तो उसमें कोई टाइम तो है, लिमिटलेस भी हो सकता है, टाइम जो है केओटिक भी हो सकता है, मेसी भी हो सकता है, उसमें फन तो है लेकिन रिस्की भी है, एंड बच्चे खुद ही कर रहे हैं। अगर आप उनको छोड़ देते हैं, हम फ्री प्ले की बात कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रक्चर्ड प्ले है, क्लास की बात करें, टाइम टेबल का पार्ट है, उसमें थोड़ी ऑर्डरलीनेस है, उसमें सेफ भी एनवायरनमेंट है, एजेंडा जो है टीचर उसको सेट करते हैं। सो फ्री प्ले और क्लास या तो स्ट्रक्चर्ड प्ले में ये बेसिक डिफरेंस है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले, हर कोई भी हम एक्टिविटी कराते हैं उसका कुछ ना कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसमें, और उसमें प्ले विद गाइडेड डिस्कवरी, मतलब उसको जब खेल रहे हैं तो आपको धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को
ये दिखाना, स्पीड और एक्सीलरेशन सिखाना है। और मैं साइंस के टीचर हूँ और मैं पीई के थ्रू कराता हूँ, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो है मैं स्पीड सिखा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक गाइडेड डिस्कवरी भी होना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस के बाद टाइम देखो, टाइम के बाद हम दोनों को जब डिस्टेंस पर टाइम करते हैं तो स्पीड आता है। और ये चीज मैं इनको कराने के लिए सिमिलरली अगर मैं नंबर सिस्टम सिखाता हूँ, हॉपस्कॉच यूज कर रहा हूँ, तो नंबर सिस्टम हो गया, इसमें फ्रैक्शंस हो गया, इसको रोमन नंबर्स कर सकते हो, ये हो सकता है कि इसमें वेरिएशंस भी हैं और मजा भी आता हो। तो चॉइस बेसिकली क्या होना चाहिए, बच्चों के पास ऑप्शंस होने चाहिए। और कभी कभी ऐसे देखना चाहिए कि कभी कभी वो पी टीचर, आप जैसे पी टीचर या स्पोर्ट्स कोच है, तो कभी कभी आपको एक नया चीज कुछ दिखाएंगे तो बच्चों को सडनली बहुत उसमें मजा आ जाएगा उनको, तो दे विल बी डिलाइट। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे कुछ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, अगर उनको मोटिवेट करते रहें तो वो अपने आप ही खेलते रहेंगे। और कोई कांस्टेंट हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो आप उसको नेविगेट करना जरूरी है। तो बेसिकली सो अगर मैं उसके किसी को अगर हम मोटिवेट कराते हैं, हम उसको ये नहीं कहें कि आप ये नहीं कर सकते, आपको नॉट येट, मतलब अभी तक आपने नहीं किया, सेकंड हो गया कि गेटिंग देयर, मतलब कि आप धीरे धीरे ठीक से कर रहे हो, गॉट इट मतलब आपने इसको समझ लिया, वाओ मतलब बहुत अच्छा किया है। सो अगर मेरे को कोई गाइडेंस अगर लगाना है, रूब्रिक्स बनाना है, मेरे को रूब्रिक्स हमेशा पॉजिटिव रूब्रिक्स होने चाहिए उसमें। टिपिकल पी प्रोग्राम का जो बैरियर्स है, टिपिकली क्या होता है कि एक्सेस टू फैसिलिटीज होते हैं। आप भी टाइप कर सकते हैं अपने चैट विंडो में कि क्या क्या व्हाट आर द बेसिक बैरियर्स, आपके स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं देखूं तो टिपिकली बैरियर्स क्या क्या है, एक तो ये इसका है फैसिलिटीज का, सेकंड टीचिंग स्पेस का हो गया, थर्ड हो गया इक्विपमेंट की एक्सेस के लिए, टाइम टेबल का प्रॉब्लम है, कुछ जगह पे जो है कुछ जगह पे फंडिंग की प्रॉब्लम है, सपोर्ट फ्रॉम अदर स्टाफ, ये भी कुछ लोग लिखते हैं। तो ये मोस्टली अगर देखेंगे, इसको छोड़ के अगर आप और भी कोई कांस्टेंट है तो आप वो भी बता सकते हैं इसमें। सो टिपिकली ये मोटा मोटा ये सारे 8-10 पॉइंट्स हैं जो मोस्टली किसी भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को बैरियर है इसके। तो अगर एक फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम हम रन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें सबसे उसको पीएसपी मॉडल में कहूंगा, इसको पीएसपी मॉडल क्या होता है, प्लानिंग, नेशनल और स्टेट फ्रेमवर्क जो है उसके साथ लिंक्ड है कि नहीं है। अगर एनसीईआरटी का क्या, ये एनसीईआरटी के करिकुलम के साथ आपका पी प्रोग्राम लिंक्ड है क्या, सीबीएसई के करिकुलम के साथ लिंक्ड है, या तो आप कोई स्टेट बोर्ड्स है तो आपकी स्टेट बोर्ड की कोई करिकुलम है उसके साथ लिंक्ड है, या तो किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ आपने अगर काम कर रहे हैं जैसे फिटनेस 365 हो या और कोई कंपनी, या आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो फ्रेमवर्क के साथ आपका प्रोग्राम लिंक्ड है। सेकेंड एस्पेक्ट है कि कम्युनिटी प्लान। सो मेक श्योर कि आप कोई भी पी एक्टिविटी करें तो साथ में कुछ ना कुछ कम्युनिटी प्लान भी रहे, जिसमें हम अलग अलग डेज होता है, योगा डे हो या उसमें 2 अक्टूबर को जो उसमें होता है ब्लॉगिंग इवेंट होता है फिट इंडिया का, किसी भी तरीके का कम्युनिटी प्लान के साथ वो लिंक्ड हो। थर्ड है स्कूल का एनुअल प्लान आपका होना जरूरी है, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का एनुअल प्लान होना जरूरी है। सेकेंड एस्पेक्ट है सीक्वेंशियल, तो सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब है कि प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में आपके प्रोग्राम जो है धीरे धीरे उसकी लेयर्स अलग अलग होने चाहिए। प्री प्राइमरी और प्राइमरी की जो एक्टिविटीज है उसमें फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। जब हम प्राइमरी में जाते हैं तो थोड़ी स्पोर्ट्स स्किल्स हो, सेकेंडरी में जाए तो मल्टीपल स्पोर्ट्स हो, और सीनियर सेकेंडरी में जाए तो स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स हो। ये हम 27 को और 29 को हम देखेंगे कि नर्सरी टू क्लास 12 में कैसे प्रोग्रेसिवली हम सीक्वेंशियली कैसे करें। सेकेंड, प्रोग्रेसिव मतलब डिपेंडेंस टू ऑटोनॉमी। तो बेसिकली पार्टिसिपेशन इन स्कूल और थ्रू स्कूल टू सेल्फ ड्रिवन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। इसका मतलब हो गया कि आपको हर बच्चे के लिए 2 तरीके की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। एक तो है कि स्कूल के अंदर आप काफी इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस हो, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशंस हो, या बाकी स्कूल्स को आप बुला के आप कुछ कॉम्पिटिशंस करा रहे हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सेकेंड है कि कुछ इंडिपेंडेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हो जिसमें बच्चों को यू कैन सेंड देम टू दोस
कॉम्पिटिशंस। मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कोई टूर्नामेंट कर रहा है, अब बच्चों को एवेन्यूज काफी बार पता नहीं होता है, अगर आप वो बच्चों को बताएं तो वो उसमें जा सकते हो, खुद पे करें और जा सकते हैं उसमें। स्कूल्स में जो टिपिकल कॉन्स्टेंट्स होता है वो है स्पेस, टाइम, इक्विपमेंट एंड पीपल। ये 4 मेन कॉन्स्टेंट्स होता है स्कूल में। द फर्स्ट, सो बेसिकली इसको स्टेप मैं उसको स्टेप कहूंगा, स्पेस, टाइम, इक्विपमेंट एंड पीपल। तो ब्रॉडली अगर देखें तो स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल में कॉन्स्टेंट होता है स्पेस का, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्मॉल एरिया गेम्स होने चाहिए। क्रिकेट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसमें गली क्रिकेट है, गली क्रिकेट हो। फुटबॉल भी पॉपुलर है क्योंकि आप किसी भी स्पेस में खेल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको प्लेग्राउंड्स को छोटे छोटे स्पेस में कैसे आप अलग अलग गेम्स कर सकते हैं। हर बच्चे की एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चे वो टिफिन खा रहे हैं या साइड में बैठ के गप्पे मार रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हर बच्चा ग्राउंड में जाके खेले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको देखना चाहिए, कैसे डिवाइड करके हम अभी देखते हैं इसको। स्कूल में जितना भी इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं है तो आप कैसे इनोवेट कर सकते हैं वो भी जरूरी है। लास्ट है सब्जेक्ट टीचर्स कैन ऑल्सो टीच, मतलब कि बाकी टीचर्स भी आप पढ़ा सकते हैं, तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप उनके टीचर क्लासेस लीजिए, वो आपकी क्लास भी ले सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू कंसीडर व्हाइल टीचिंग? जैसे ये एग्जांपल है स्पेस, टाइम, इक्विपमेंट एंड पीपल। आप देखेंगे इसमें कि सेम गेम तो बहुत सेम है। उसमें सिंपल रिले रेस हो सकता है, उसमें बॉल लेके फुटबॉल के साथ कर सकते हैं। आप उसी में बीन बैग लगा कर सकते हैं। आप सेम चीज में उसमें थ्रो भी कर सकते हैं। उसमें आप तो ये या तो टायर ट्यूब लेके कर सकते हैं। तो बेसिकली सेम एक्टिविटी है, लेकिन आप देख सकते हैं वेरिएशन ये है, आउटकम सेम है उसका, बट छोटे से स्पेस में आप कितने सारे गेम करा सकते हैं। इसमें 6 अलग अलग एक्टिविटीज हो पा रहा है सेम एक्टिविटी, सेम चीज के लिए। ये कुछ एज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स है तो आप हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों को जो है कलर्स बहुत पसंद है, उनके लिए आप ये कुछ इक्विपमेंट है इसको आप यूज कर सकते हैं। हुला हुप्स हो, स्पॉट मार्कर्स हो, हर्डल्स हो, अलग अलग साइजेस के हर्डल्स हो, छोटे बच्चों के लिए भी करा सकते हैं। जंप रोप्स है, स्किपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लैडर है, एजिलिटी लैडर जो है वो बहुत एक्टिविटीज उससे हो जाता है। स्पेस बॉल या सॉफ्ट बॉल है। जैवलिन देख सकते हैं, मतलब बच्चे जैवलिन नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जैवलिन होने जरूरी है, छोटे बच्चों के लिए छोटे साइज का भी हो सकता है। बास्केटबॉल के रिंग जो रिंग्स है इसकी अलग अलग साइज के होते हैं, मतलब 3 फुट 4-5 फुट से ऊपर लेके 10 फुट तक आप अलग अलग साइजेस के बास्केटबॉल के मिल सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए। पैराशूट से हमने एक फोटो देखा था जिसमें बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, कम बच्चे भी कर सकते हैं। लॉलीपॉप पैडल्स है, उसमें हर्डल्स है। बीन बैग बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको और रिबन बॉन्ड से आप इसमें बहुत म्यूजिक के साथ काफी कुछ कर सकते हैं। ये तो सिमिलरली फ्रिस्बी हो गया, बीन बैग्स हो गए, क्रिकेट के सेट से प्लास्टिक के हो सकते हैं बिगिनिंग में, बाद में जाके जैसे प्रॉपर फुटबॉल क्रिकेट से के। रिले बैटन से छोटे बच्चों को अलग तरीके से कर सकते हैं। कोन के अलग अलग साइजेस है, फ्लैग की अलग अलग साइजेस है, मार्कर से। तो ये अगर आप देखेंगे सॉसर कौन सा ये बहुत है, ये कुछ एज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट है। छोटे बच्चों के लिए अलग इक्विपमेंट होना चाहिए, बड़ों के लिए साइजेस भी। फुटबॉल का साइज बहुत छोटा साइज से लेके नॉर्मल फुटबॉल साइजेस है। एक पी एक्टिविटी कार्ड का कंस्ट्रक्ट क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन कार्ड का आप जब स्कूल के लिए बनाएंगे। आप ये देखिए कि आउटकम इसका सेम है। पर्पस होना चाहिए, हर एक्टिविटी का पर्पस होना चाहिए, कि वेरिएशंस बता होना चाहिए। आप इसमें है तो सही, इसमें एक्चुअली लाइन के दूसरी तरफ आप मार रहे हैं और इसमें स्ट्राइकिंग है। अब दैट इज वेदर आप उसको आप इसमें वॉलीबॉल सिखा रहे हैं, नेट में स्क्वाश करा रहे हैं, किटी करा रहे हैं, टेनिस करा रहे हैं। तो ये है जो आप बच्चों को अलग अलग वेरिएशंस है एक्टिविटीज के अलग अलग इक्विपमेंट के साथ। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, सेफ्टी मेजर्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ ये लिंक है, करिकुलम लिंकेजेस क्या है इसके, और सेल्फ असेसमेंट कैसे हो सकता है, उसमें स्किल्स क्या सीख रहे हैं। तो ये ब्रॉडली ये पी एक्टिविटी कार्ड की कंस्ट्रक्ट है। फिजिकल टाइम पे आप टाइम को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टिपिकली स्कूल्स में एक भी पीरियड होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है पर वीक फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स।
अगर हम बच्चे को 60 मिनट की एक्टिविटी कराना है, फिर 60 मिनट्स ऑफ एक्टिविटीज में एंगेज कराना है, स्कूल या स्कूल के बाहर हो, तो क्या करा सकते हैं? आप इसको एक्सटेंड कीजिए, जैसे सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स की यूज कीजिए। सो यू कैन कन्वर्ट 15% ऑफ द हमारा एक सेशन होगा बाद में टुवर्ड्स द एंड अराउंड द 10th of February we will do a session 2 days on integration of physical education with sports with other subjects. आप मेरे को आप भेज सकते हैं, अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं तो आप भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं और कि आप कौन सी क्लास की कौन सी सब्जेक्ट को स्पोर्ट्स के थ्रू करा सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी आपको लास्ट में शेयर करूंगा, तो भेज सकते हैं। सो वी कैन एक्चुअली लुक एट सब्स्टिट्यूशन पीरियड्स को कैसे कर सकते हैं। सेकंड है कि फेस्टिवल्स है, इंटरनेशनल योगा डे का फेस्टिवल है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया, फिट इंडिया स्कूल वीक हो गया। तो इस तरीके की एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए। डांस को फिजिकल एजुकेशन के साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो डांस दो इट इज पार्ट ऑफ ADM, आर्ट डांस एंड म्यूजिक, बट डांस इज आल्सो पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आप उसके जो बच्चों को जिसको डांस पसंद है तो डांस ये कर सकते हैं, प्लस डांस को आप यूज भी कर सकते हैं पीरियड। एडवेंचर एक्टिविटीज हो, वेकेशंस हो, और अगर कोई पाथवेज है, मतलब कि कॉरिडोर है, रूफटॉप है, आप उसको, मैं बहुत सारे स्कूल में देखा भी हुआ कि रूफटॉप्स को अच्छी तरीके से उन्होंने स्केटिंग रिंग में कन्वर्ट किया, टेनिस खेलने के लिए कन्वर्ट किया, मिनी बास्केटबॉल रिंग्स लगाया हुआ है चारों तरफ फेंसिंग करके। तो रूफटॉप अगर स्पेस नहीं है तो रूफटॉप को भी यूज कर सकते हैं। 30-30 प्रिंसिपल क्या है? 30 मिनट्स आप फिजिकल एजुकेशन कराइए स्कूल में, 30 मिनट्स को आप आफ्टर द स्कूल भी आप करा सकते हैं उसमें। तो एक्टिव पी पीरियड, एक्टिव असेंबली, एक्टिव रिसर्च, एक्टिव कोचिंग, कॉम्पिटिशन्स, फ्री प्ले और कम्यूटिंग, ये सारी चीजें आप करा सकते हैं। ये जो है आपको 60 मिनट्स अगर कराना है तो 30 मिनट्स को आप रेगुलर पी पीरियड में कराइए, और 30 मिनट्स में असेंबलीज, अगर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन असेंबलीज में आप एरोबिक्स और जुम्बा और बाकी एक्टिविटीज कराएंगे तो इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। रिसेस के टाइम में अगर चारों तरफ ये कुछ ओपन जिम्स हो, कुछ स्विंग्स हो, सैंड पिट हो, इस तरीके से बहुत सारे एरियाज को अगर छोड़ देंगे तो रिसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर स्कूल इफ यू डू एक्टिव कोचिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग बिफोर आफ्टर स्कूल हो, और कॉम्पिटिशन्स हो, फ्री प्ले के लिए आप भी कुछ टाइम स्लॉट होना चाहिए। अभी एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें इंक्लूसिव प्रोग्राम है, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The voice is not audible, वॉइस फिर से नहीं आ रहा है। हेलो हेलो सर, अभी शेयर्ड है, अनशेयर्ड है? सर अभी शेयर्ड है क्या? अभी वॉइस अभी भी नहीं आ रहा सर। हेलो हेलो सर, वॉइस आ रहा है? हेलो सर मेरा वॉइस आ रहा है आपको? participants, be with us because of some technical issues. Voice is not audible within few minutes. सर मेरी आवाज नहीं आ रही। सर कैन यू हियर मी? Hello. Yes, sir. Sir, you can, sir. सर कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है सर? सर कैन यू हियर मी? सर सुनाई दे रहा है? Okay. Sir, now it is to hear. Now it is okay, sir. Okay. Okay. And today with us even PS Dara sir is there, sir. Sir, on behalf of Ministry Youth Affairs and Sports,
Hello India, Sai LNC behind us. And be welcome. Sujit, Yeah, okay, sir. I'm just starting. Yeah. Sir, आपका म्यूट कर लीजिए सर. Yeah. Okay. So the next point is about so when you're looking at whole school approach to fitness, तो basic aspects क्या है? एक तो हो गया physical activity, physical education जो class है PE की period है. Second, we are talking about physical activity before and after school. ये second aspect है जिसकी हम बात कर रहे हैं. थर्ड एस्पेक्ट है फैमिली और कम्युनिटी को एंगेज कर पाए. जैसे फिट इंडिया का प्रोग्राम है जिसमें फिट इंडिया स्कूल वीक है और उसमें पेरेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दोस एक्टिविटीज. तो आपके स्कूल में जैसे एनुअल डे होता है, आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं. सो यू फाइंड आउट वेज वेयर यू कैन इन्वॉल्व पेरेंट्स. नेक्स्ट हो गया स्टाफ इन्वॉल्वमेंट. कोई भी प्रोग्राम हो जिसमें स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. बाकी सब्जेक्ट टीचर्स है, स्पेशली प्राइमरी की जितने भी टीचर्स हैं, वो they should be trained on physical, how to take PE classes and physical activity during the school. एक आप खुद भी देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं स्कूल में. ये जो 5 चीजें हैं और उनकी रिलेशनशिप क्या है फिटनेस के साथ. और हर कैटेगरी में आप सोचिए कि आप अपने स्कूल में क्या क्या 2 एक्टिविटीज आप इंक्लूड कर सकते हैं. Whether it is physical education, physical activity before and after school, family community engagement, staff involvement, या during the school or physical activity. NCERT का जो कंस्ट्रक्ट है करिकुलम थीम्स में क्लास 1 to 10th के लिए जो है, और ये जो 11 to 12th है ये CBSE की स्ट्रैंड्स है. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें. ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द स्ट्रैंड्स. सेकेंड है मूवमेंट अवेयरनेस, जिसमें हमने बात किया कि बॉडी अवेयरनेस, स्पेस अवेयरनेस और एफर्ट अवेयरनेस, 3 चीज की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमें और ये हम जब सिखा रहे हैं मूवमेंट तो उसमें हम 3 एस्पेक्ट्स को सिखाते हैं. लोकोमोटर स्किल्स हो गए जिसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. रनिंग, जैसे लोकोमोटर स्किल में आगे रनिंग, हपिंग, जंपिंग, स्किपिंग, जिसमें आपको डॉजिंग, ये सब में आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. सेकंड हम कहते हैं मैनिपुलेटिव स्किल्स में हमें एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत. जैसे हम बैट हो गया, सो बैट या हॉकी स्टिक हो गया, तो उसमें हम टीटी या टेबल टेनिस और टेनिस की रैकेट है, तो उसको जब हम करते हैं तो उसमें हम कैचिंग, थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग की एबिलिटीज हम सीख सकते हैं. और एक बॉल है जिसमें हम ड्रिबलिंग विद फीट, ड्रिबलिंग विद हैंड, इस तरीके, कैचिंग ए स्मॉल बॉल, कैचिंग ए लार्ज बॉल, बाउंस बॉल, तो वो है मैनिपुलेटिव स्किल्स. थर्ड एस्पेक्ट होता है बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें हम बात करते हैं स्टेबिलिटी और बैलेंस की बात करते हैं. तो ये ब्रॉडली मूवमेंट अवेयरनेस में हम ये इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें थर्ड एस्पेक्ट है फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स स्किल्स की एबिलिटीज है. टीम और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स is also one of the strengths, जिसमें हम variety of individual sports और team sports बच्चों को क्लास 5th onwards इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. योगा जो है क्लास 6 onwards इंट्रोड्यूस्ड है NCERT में. फिर फूड एंड न्यूट्रिशन, ये बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे हैं, बट ब्रॉडली क्लास 5th onwards बच्चे ज्यादा जान पाते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में. जैसे फूड लेवल को कैसे पढ़ना है, कलर प्लेट है, डिफरेंट कलर की फूड का मीनिंग क्या है, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, व्हाइट, अलग अलग कलर का है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, मिनरल्स और विटामिन्स के सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हेल्प करते हैं. तो ये सारी चीजें फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर आता है. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. वी एंड आवर एनवायरमेंट, तो उसमें हमारा काफी सारे एक्टिविटीज है जो आप जिसमें आपको सो बेसिकली अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसको आप एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड है उसमें, और इसमें आपकी बहुत सारे एक्टिविटीज आप ये भी करते हैं, जैसे एडवेंचर की एक्टिविटीज कर रहे हैं, और इसमें आप सोशल और कोलैबोरेटिव बिहेवियर के बारे में ही करते हैं. सोशल हेल्थ हो गया. फिर 9th-10th में ओरिएंटेशन टू फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन का है, और कंज्यूमर हेल्थ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज. ये सारे जो है ये NCERT के स्टूडेंट्स हैं.
और जो राइट हैंड साइड में जो दिखाया मैंने, ये सीबीएसई के क्लास 9 to 12 का स्टूडेंट है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट हर टर्म में एटलीस्ट एक गेम्स स्पोर्ट्स करें, जिसमें एक एक करके करें, जिसमें एथलेटिक्स या तो स्विमिंग हो, एक टीम स्पोर्ट्स हो, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो और एक एडवेंचर स्पोर्ट्स हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस सेकेंड स्ट्रैंड होना चाहिए। थर्ड है हेल्थ एंड एक्टिविटी कार्ड, जिसमें हम खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। लास्ट है सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एंड एक्शन, सेवा है, जो हमारे एससीबीडब्ल्यू का पीरियड होता था पहले, वो लिंक कर दिए हैं ऑन फिजिकल एक्टिविटी के साथ। और आप उसमें वेदर इट इज प्लॉगिंग हो गया, स्वच्छता हो गया, या कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज की है, वो सबको आप सेवा के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट ये एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज जो है ब्रॉडली इसमें हम ये कंस्ट्रक्ट है, उसमें हम प्री प्राइमरी से लेके क्लास 3 तक की जो बात करें, हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल मूवमेंट स्किल आप सीखते हैं। फिर उसके बाद जब हम क्लास 3-4 के आसपास आता है, जिसमें मॉडिफाइड और रिक्रिएशन गेम्स हम सिखाएं बच्चों को, क्लास 4 to 8 में बेसिक स्पोर्ट्स स्किल्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स का, जैसे हमने देखा उसमें टीम स्पोर्ट्स हो, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो, आप बच्चों को वो सिखाते हैं, जिसमें एथलेटिक्स और स्विमिंग जो है वो मैंडेटरी है कि आपको उनमें से कुछ ना कुछ सिखाए। मतलब एक मतलब स्पोर्ट्स होना बहुत जरूरी है, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, एथलेटिक्स वो सीखें, टीम और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स सीखें। और जब हम क्लास 9 to 12 में आते हैं तो हम स्पोर्ट्स, पहले तो हम स्पोर्ट्स के स्किल सीख रहे हैं, जैसे हम कैचिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, क्रिकेट के जो शॉट्स हो गए, आप इंडिविजुअली आप अलग अलग सीख रहे हो, लेकिन एज अ गेम अगर हम पूरा करा रहे हैं, उसमें टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को करें। और न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल जो है वो धीरे धीरे करके बच्चे सीखें। ये जो राइट हैंड साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सारी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज और प्रॉप्स है, अलग अलग स्कूल्स की एक्टिविटीज दिखेंगे। यू कैन सी दैट इन ऑल दिस बहुत सारे बच्चे एक साथ ही एंगेज्ड है, whether it is खो-खो करें, ये सैक रेस हो, या इसमें हम टग ऑफ वॉर हो, या स्केटिंग हो, या तो यहाँ पे सर्किट्स बने हुए हैं, तो किसी भी उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हो, या रनिंग में हो, या तो ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में हो, और ये ओपन मार्क्स है ऑन द ग्राउंड। तो ये सारे एक्टिविटीज एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज और प्रॉप्स यूज करते हैं। योगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें एनसीईआरटी का मैंने जैसे बताया, क्लास 6 ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी ने उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें योगा फॉर हेल्थ और योगा फॉर फिटनेस के ऊपर है ऑन वन एस्पेक्ट, एंड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ, लिविंग और कंसंट्रेशन के। एनसीईआरटी की वेबसाइट में ये सारे पीडीएफ फाइल्स है, आपको सारे बुक्स जो है फ्री में आपको अवेलेबल है। क्लास 6 to 12 की जो बुक्स है एनसीईआरटी के उसमें है ऑलरेडी। ये लिंक्स है एक्चुअली, आपसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो ये सिलेबस है, क्लास 1 to 10 का सिलेबस भी है, क्लास 6 to 10 का योगा के प्रोटोकॉल्स और योगा की जो किताब है वो सब कुछ बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम कराते हैं उसमें फिटनेस असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के असेसमेंट होता है, इसी तरीके से फिजिकल फिटनेस असेसमेंट भी होना जरूरी है। तो साल में 2 बार फिजिकल फिटनेस असेसमेंट हो और उसकी रिपोर्ट कार्ड हर बच्चे को मिले, ताकि वो जब घर जाए तो उसके हाथ में 2 रिपोर्ट कार्ड हो, एक तरफ एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड हो और एक तरफ, और सेकेंड वन हैज टू बी फिटनेस रिपोर्ट कार्ड। तो सो दैट वे ये क्या होगा कि बच्चों का बैलेंस्ड एजुकेशन होगा, जिसमें एकेडमिक्स पे ऊपर फोकस है और स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस है उसका। तो फिजिकल फिटनेस रिपोर्ट कार्ड की जरूरी है। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक पे फिजिकल फिटनेस असेसमेंट होना चाहिए हर बच्चे के लिए, सेकंड है स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट भी होना चाहिए। जो बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, जो टॉप 1% बच्चे हैं, तो उनका स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट भी होना जरूरी है। हर बच्चे का पर्सनैलिटी और लर्निंग स्टाइल बड़ा यूनिक होता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी पी प्रोग्राम करें, सारे एक्टिविटीज बॉयज एंड गर्ल्स भी ये करें, सो दैट इट इज नॉट द ऑर्डर इन विच दे गेन स्किल। उसमें एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूरी है कि आप जब सिखा रहे तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप सिखाइए, ताकि वो प्रोग्रेसिव हो। सेकंड है, रिमेंबर व्हेन चिल्ड्रन आर बीइंग एक्टिव, स्टे अराउंड देम एंड कीप देम। बच्चे जब बहुत जोश के साथ खेलते हैं तो उनके साथ उनको चोट लगने का काफी ज्यादा है, तो आप
उनके इन एंड अराउंड रहिए ताकि वो आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Allow children to explore their own feeling about different activities. कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों से पूछिए कैसे लगा, क्या चेंज होना चाहिए, तो बहुत सारे नए आइडियाज वो भी देते हैं। अगर कोई एक्टिविटी थोड़ा हार्ड है तो आप उसका इजी वाला ट्राई कीजिए। लास्ट है कि फीलिंग ऑफ सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगना चाहिए कि उन्होंने कुछ सीखा, कुछ उन्होंने अचीव किया, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट हमेशा ही होना चाहिए कि हाँ आज कुछ किया हमने। ये नेक्स्ट है होल स्कूल अप्रोच लर्निंग स्पेस के लिए। तो आप पूरा स्कूल जहां जहां पे आपको स्पेस मिलता है, क्योंकि काफी स्कूल में स्पेस की कंस्ट्रेंट है, जहां जहां पॉसिबल है आप उनको कन्वर्ट कीजिए इसमें लाइन मार्किंग। सो ये बहुत सस्ता, कोई कॉस्ट भी नहीं है। जैसे स्नेक एंड लैडर बोर्ड गेम से पहले आप उसको ग्राउंड में कीजिए, इस तरीके से सर्किट करिए। या ये मिरर मी वाला जो गेम है, मिरर वाला गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आप मिरर जो एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट करता है मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं राइट हैंड को ऊपर करूंगा तो मिरर लेफ्ट हैंड को ऊपर करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाला चीज ग्राउंड में कीजिए। हॉपस्कॉच बहुत इंटरेस्टिंग वे, बहुत सारे आप उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स भी सिखा सकते हैं, ABCD से लेके रोमन नंबर से लेके नॉर्मल नंबर्स, फ्रैक्शंस, बहुत सारी चीजें आप हॉपस्कॉच के साथ कर सकते हैं, बच्चों को मजा आता है। सिमिलरली स्नेक माने ये जो फॉर्मेशंस है, कोई भी फॉर्मेशन आप कर सकते हैं एंड दे विल मोर परमानेंट। पेरेंट्स भी आएंगे तो खुद के आएंगे, टीचर्स भी यूज करेंगे, सब यूज कर सकते हैं उसको। क्लासरूम बेस्ड PE एक्टिविटीज है बहुत सारे, काफी कोविड-19 हो, बारिश हो, धूप हो, विंटर हो, तो बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज को आप क्लासरूम के अंदर या मल्टीपर्पज हॉल में कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल जैसे मैंने अभी मिरर का गेम बताया। सेकेंड, म्यूजिक के साथ आप सिंगल स्पॉट ऑन द स्पॉट मार्चिंग, जॉगिंग, वन स्टेप लेफ्ट, वन स्टेप राइट, वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड, टो टैपिंग, जंप्स, ट्विस्टिंग, ये सारे चीजें आर्म वेरिएशन के साथ ये सारे एक जगह पे भी कर सकते हैं। सिमिलर एरोबिक्स हो गया, डांस हो गया, स्क्वायर डांसिंग हो गया, सिंपल डांसिंग, सब पॉसिबल है। और क्लासरूम के अंदर भी आप पार्टनर एक्टिविटीज काफी करा सकते हैं उसमें, और MP हॉल में तो हो ही सकता है उसमें। स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस है, डेस्क के भी एक्सरसाइजेस है। और सिमिलरली आप जो सर्किट्स हम बाहर कर रहे थे वो आप जहां पे कॉरिडोर में अवेलेबल है सब कर सकते हैं उसमें। और आप छोटे जैसे ये पॉपअप गोल पोस्ट है, हुला हुप्स है, बैलेंस बीम्स हैं, हर्डल्स है, कोन्स हैं, ये जिम्नास्टिक्स हो गया, ये मार्शल आर्ट की मैट्स है, सब कुछ आप अंदर स्पेस कर सकते हैं। और ये ट्रैम्पोलिन का बाहर भी देख सकते हैं, ट्रैम्पोलिन भी करा सकते हैं। तो ये छोटे मॉडिफिकेशन जो भी बाहर हो सकता है वो सारे अंदर भी हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग गेम है साइमन सेज करके, जिसमें आप कहेंगे साइमन सेज, एक बच्चों को बोल सकते हैं, वो अपना कार्ड पिक कर सकते हैं या तो कुछ ही बोले, जो भी उनका कार्ड में आएगा नंबर। when Simon says jump high, you can इसको वेरिएशंस भी कर सकते हैं। Simon says jump high, और इसमें बच्चों को एनिमल्स बड़े पसंद है, तो you say walk like a monster और walk like a ape, एप जैसे स्क्रैच करो, ट्विल करो, जंपिंग जैक्स कर रहे हो, एयर गिटार प्ले करने की ये कर रहे हैं। सो वॉक लाइक अ डक, आप कहोगे फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, क्रॉल लाइक अ बेबी की तरह क्रॉल कर सकते हैं। सिंग विद अ सिली वॉइस, स्टैंड ऑन वन फुट। तो ये साइमन सेज बहुत ही पॉपुलर गेम है, आप उसमें बहुत सारे एक्टिविटी क्लास के अंदर कर सकते हो, उसमें वेरिएशन भी हो जाता है क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से करेगा। मार्चिंग लाइक ए सोल्जर, तो हम वैसे करके वो किसी को हक करे, किसी को क्लैप कर सकते हैं। ये टैप योर माउथ, टैप योर फेस, प्ले विद योर हेयर, बाल को रफल करना है। बार्क लाइक ए डॉग, कुत्ते की तरह आवाज निकालो, लायन की तरह टाइगर। तो ये सारे, ड्रिंक मिल्क तो एक्शन कर सकता है। तो ये सारे जो साइमन से बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो है नर्सरी से क्लास 12 तक कराना है। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि पी पीरियड में तो आपको 30 to 40 मिनट्स ही मिलेगा। आपको असेंबली यूज करेंगे, रिसेस को यूज कीजिए, सेंसरी पार्ट जो मैंने दिखाया था आपको वो कीजिए, आफ्टर और बिफोर स्कूल कीजिए, और कुछ घर के लिए असाइनमेंट भी दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक पी पीरियड जो 40 मिनट का होता है, आप उसको कैसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं कि हम ये जब कैसे किस तरीके से हम
यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वार्म अप और कूल डाउन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लीड अप गेम्स इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड गेम्स, स्मॉल एरिया गेम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जब हम कोई एक्टिविटी करा। अब हम देखेंगे उसको कि कैसे कराना है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक स्कूल है, स्कूल में आप देखिए फोकस इस स्कूल का नोटिस बोर्ड देखिए, कंपटीशन भी है, उसमें क्लब्स ऑफ फन वीक्स भी है, हेल्दी लाइफस्टाइल भी है, उसमें स्कूल गेम्स का क्रू भी है, करिकुलम भी है उसमें, और उसमें देखिए कि वो स्पोर्ट्स डे की प्लानिंग कर रखा है, क्रॉस कंट्री भी है, तो सब कुछ ही कर रहे हैं। मतलब एक एज ए स्कूल ये एक थोड़ा होलिस्टिक प्रोग्राम है। आप उनके जो सर्टिफिकेट्स है वो भी उन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। तो ये एक अच्छा नोटिस बोर्ड है जो जैसे आप यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए जब वो गोल सेटिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल हैज टू बी रियलिस्टिक। उसको स्मार्ट गोल कहते हैं, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक हो, बड़ा क्लियर गोल होना चाहिए। मेरे अगर 100 मीटर अगर मैंने 20 सेकंड लगा रहा हूँ तो मेरा फोकस होना चाहिए मैं उसको 19 सेकंड में कर पाऊँ अगले बार। बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, 1 सेकंड इम्प्रूवमेंट है। मेजरेबल होना चाहिए, कोई भी चीज करे तो मेजरेबल होना चाहिए। तो आपके पास स्टॉप वॉचेस होने चाहिए, टेप्स होने चाहिए, जो भी हो मेजर कर पाए, और अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल इसलिए है कि अगर कोई हाई स्कूल का बच्चा है, आप कहोगे कि ओलंपिक का जो 1.8 फीट वाला ओलंपिक वाला कर पा रहे हैं और 3 फुट कर पा रहे हैं, आप कहोगे 3 फुट से 8 फुट कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड भी होना चाहिए। बोले 6 महीने के अंदर मुझे करना है, या 3 महीने में करना है, या 1 साल के अंदर करना है, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें कमिटमेंट होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, अनवॉलंटरी एफर्ट होना है, अपने आप ही करे तो तभी वो पूछ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल कि हाउ फार कैन वी जंप, तो ये 3 अलग अलग लेवल्स है। तो मैं अगर हाई स्कूल के बच्चों को बोलूँ कि ओलंपिक चैंप की तरह करो तो वो कर ही नहीं सकते। हमने देख लिया इसको। प्लानिंग पी सेशंस, तो ये बता रहा हूँ कि एक स्कूल की कैलेंडर को कैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक स्कूल में जैसे हमारे पास होता है टोटली 52 वीक्स होता है, आप उसको 52 वीक्स को आप 12 हफ्ते उसमें से हटा दीजिए। 12 हफ्ते इसलिए हटा दीजिए क्योंकि 12 हफ्ते या तो समर वेकेशन है, या विंटर वेकेशन है, या कुछ एग्जामिनेशन है, तो ये रिमूव 12। सो यू प्लान फॉर 40 वीक्स, 40 हफ्ते। 40 हफ्ते इज वेरी गुड, 9.5 मंथ्स का है। 40 वीक को आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4, और उसको दो हफ्ते में डिवाइड कर लीजिए। वीक 1 and 2, 3 and 4, 5 to 6, 7 to 8 and 9 to 10। उसमें क्या होगा, उसमें फायदा क्या होगा। अब हम उसको 40 वीक्स को हमने जो किया है 20 सेट्स ऑफ एक्टिविटीज में हमने डिवाइड कर लिया इसको। अगर 4 into 10 में, तो 2 हफ्ते में वाटर एक्टिविटी, फिर पैटर्न एक्टिविटी, फिर रिलेज, फिर स्कीपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, मूवमेंट के ऊपर सर्किट, चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस इज फन, म्यूजिक गेम्स है, ओरिएंटेरिंग जिसमें हम सेवा और वी एनवायरनमेंट सबके साथ हुआ, बॉल एंड रनिंग का हो गया, डांस हो गया, स्किपिंग, वॉकिंग, रिलेज हो गए, सर्किट्स, गेम्स, वाटर गेम्स, फिर म्यूजिक एक्टिविटीज। इस तरीके से कुछ हम कर रहे हैं जिसमें हमारा ऑल चिल्ड्रन आर वर्किंग ऑन सेम एक्टिविटी। सारे बच्चे हैं स्कूल में, अगर 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे बाहर आ रहे हैं, तो ये कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से होगा, और इसमें बड़ा क्लियर होना चाहिए एक्टिविटीज हम पिक कर रहे हैं। तो वो जैसे हमारे इन्वेजन गेम्स के ऊपर है, बॉल एंड हुक्स हो गया, फिर कौन से कल्चरल डांस के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मूव ये करना है, जैसे मूव टू म्यूजिक करना है तो क्या करना है, एरोबिक्स, जंप्स, जैम, डांस, किस तरीके से करना है। ये हो गया कि अगर सारे एक्टिविटी एक साथ करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया कि हमने 40 वीक्स को किस तरीके से किया। वीक 1 और 2 था, हम इसको स्प्लिट कर दे। वीक 1 में क्या करूंगा मैं, ग्रुप ए जो है, अगर इसमें इंडिविजुअल क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, तो वीक 1 में मैंने ग्रुप ए के साथ काम करूंगा, ग्रुप 2 में ग्रुप के साथ, फिर वीक 2 में ग्रुप बी, फिर ग्रुप ए उसके साथ, उसको 2 पार्ट में कर दिए। रनिंग एंड वॉकिंग इंडिपेंडेंटली कर सकते बच्चे, चाइल्ड लेड है। सर्किट टू म्यूजिक ये टीचर लेड है। तो कुछ चीजें बच्चों को पढ़े, कुछ चीजें आप खुद दिए करें। तो इसमें क्लास को मैंने 50% कर दिया, 40 बच्चे आ गए तो मैं इस तरीके से उसको कर सकता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल हो गया 2 क्लासेस वर्किंग टुगेदर विद 1 टीचर। 2 क्लासेस बाहर आए और
one teacher for each activity. टीचर ए के पास बॉल है, टीचर बी के पास हुक गेम्स है, तो ग्रुप ए को इसके पास जाएगा, फिर ग्रुप बी दूसरे टीचर के पास है, अगले हफ्ते वो स्वैप हो जाएंगे। तो हमें पता है कि हमें एक हफ्ते में पता है कि ये हफ्ते में बॉल गेम है, अगले हफ्ते में हुक गेम है, दूसरे को पता है कि हुक गेम के बाद बॉल गेम है, और ये 2 टीचर्स इसमें। पहले में हमारे पास टीचर नहीं थे, एक ही टीचर था, हमने उस तरीके से उसको डिवाइड किया। इस केस में 2 अलग अलग टीचर्स हैं। फिर हम कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे एक साथ आ गए और वो बहुत सारे क्लासेस एक साथ आ गए वीकली उसमें, तो हम क्या करें उसमें, हम उसको इस तरीके से डिवाइड करें, या तो वीकली रोटेशन करें या डेली रोटेशन करें, हमारे पास चॉइस है। हम कहें कि हम उसको चार क्लास में इस तरीके से डिवाइड कर ले, सर्किट, मूव टू म्यूजिक, गेम्स और बॉल एंड हुक। तो हम चार सेक्शन है जिसको हम ग्रुप ABCD बोल दिए, 4 सेक्शन है या तो 4 ग्रुप्स हैं, उनको इस तरीके से हम रोटेट करें। क्लास एक और एग्जांपल है जिसमें ईच क्लास और एवरी डे ऑफ द वीक हैज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। तो हम रोज अलग अलग एक्टिविटीज करें ताकि बोरिंग ना बने। अगर हम P पीरियड्स रोज है एक पर्टिकुलर उसके लिए, तो वीक 1 to 5 के लिए हम इस तरीके से एक्टिविटीज को करें, 1 से लेकर 5 तक। हर मंडे को जाएं बाहर, ओरिएंटेलिंग करें, हर ट्यूसडे को गेम खेले, हर वेडनेसडे को स्किपिंग करें, थर्सडे को फोक डांस करें, फ्राइडे को सर्किट्स करें, और 6 to 10 के लिए वो रोटेट हो जाएगा, मूव टू म्यूजिक, सर्किट और ये। तो ये हमारा 10 वीक्स को ये कर सकते। तो ये आपको अलग अलग मैंने वेरिएशंस बताया किस तरीके से कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है जो एनुअल प्लान है उसमें हम बेसिकली होना चाहिए, उसमें एक्सपेक्टेड आउटकम हर एक में होना चाहिए। एज एन एग्जांपल, अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो आई शुड बी एबल टू रन इन अ कंप्लीटेड वे। अगर मैं डॉजिंग कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ डॉज कर पाऊँ। कैचिंग कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा 5 मीटर दूर से कैच कर पा रहा हूँ। अगर मैं बैलेंस कर रहा हूँ कहूँगा कम से कम 2 मिनट के लिए बैलेंस कर पाऊँ। तो इस तरीके से हमें एक्टिविटीज कुछ कर रहे हैं। फिर हम ये कर रहे हैं कि अगर इसी को अगर पसंद वो करें, थोड़ा सा डिटेल कर दें इसको। हम कर रहे हैं कोई भी चीज कर रहे हैं, वॉकिंग और म्यूजिक अगर कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि पहले वार्म अप होगा, फिर म्यूजिक वाला कर रहे हैं और कुछ बीट बैक एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो वीक 1 से लेकर वीक 6 को सेशन 1 सेशन 2 के तरह डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली फुटबॉल के लिए कर रहे हैं तो रोज एक सिंपल ड्रिल है, कोन ड्रिल है, फिर पासिंग एंड रिसीविंग कर रहे हैं, फिर जंपिंग जैक्स है और पासिंग एंड टर्निंग। तो इसमें वार्म अप भी कर रहे हैं, वार्म अप के साथ साथ वार्म अप कर रहे हैं और मेन गेम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कर रहे हैं। तो एक तो वार्म अप हो गया और एक मेन जो भी हमारा एक्टिविटी हो गया। तो हर बार इम्पोर्टेंट है कि आपको फिटनेस कुछ एक्टिविटी हो और मेन जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं। 40 मिनट्स का पीरियड है। हाउ डू यू प्रिपेयर चिल्ड्रन कि हम 40 मिनट्स किस तरीके से करें ताकि वो इफेक्टिव रहे। तो बेसिकली फर्स्ट है, पहला 1 मिनट जो है वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग जो भी कराना है 60 सेकेंड्स आप वो कराइए। 1-2 मिनट स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें, उसमें स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करें उसमें। फिर हम 1-2 मिनट जो है इसमें हम टिपिकली हम कर रहे हैं कि स्क्वाट्स कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, जंपिंग जैक्स कर रहे हैं। बॉडी थोड़ी सी इस सबसे थोड़ी सी वार्म अप हो जाएगा। एजिलिटी रन कर रहे हैं तो थोड़ी सी बॉडी उसमें फ्लेक्सिबल बन जाएगा, थोड़ा वार्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमने ग्रुपिंग की बात किया था इससे पहले, या तो ग्रुप ABCD कर रहे हैं, जो अलग अलग बच्चे अलग अलग ग्रुप में जा रहे हैं, कर रहे हैं। जब वो खत्म हो जाएगा लास्ट में, फिर हम फिर से 2 से 3 मिनट डायनेमिक स्ट्रेचेस करें, नेक, शोल्डर, आर्म, ट्रंक को करें, ऊपर से लेकर नीचे तक कर रहे हैं उसको। फिर हम 1 मिनट का थोड़ा कूल डाउन के लिए हम शेकिंग ऑफ आर्म्स और लेग्स को करें, और 1 मिनट का डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या लाफिंग करें, ताकि वो 3 से 5 मिनट का कूल डाउन हो गया, 3 से 5 मिनट का वार्म अप हो गया और बाकी टाइम बड़ा क्लियर है। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। तो इसमें क्या होगा कि 30 मिनट्स के करीब बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए उनको मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम वार्म अप एंड कूल डाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 सेकंड को हम कैसे प्लान करें। ये हमने डिस्कस किया था, स्टेप, स्पेस, टाइम, इक्विपमेंट एंड पीपल। अब एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर बड़ा स्पेस है आपको क्या करना चाहिए, आपके पास अगर कम स्पेस है तो क्या करना चाहिए। ये जो एग्जांपल आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा स्पेस है स्कूल में। तो हमने 2 पैराशूट्स दिए
और हम इस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। The voice is not audible. Participants, please, because of technical problems, because of No, sir, it's okay. network Doesn't issues. matter. So, Okay, sir. can you see, sir? Yeah, I Can you can see see that? that slide, sir. Slide, yes, sir. It is clear. Okay. Yep. Okay. Okay. So Planning long term, so that is the slide. So planning long term नहीं है, space time and equipment वाला आ रहा है सर. Here we are seeing a planning long term, sir. That is the slide which is visible for us. सर वो नहीं आ रहा है, space time and equipment नहीं आ रहा है. Space time equipments आ रहा है. It is there. Space time equipments. Yes. हाँ, engage. सर आपके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है सर? मैंने दूसरे फोन में देखा, मेरे को तो ठीक है. Okay, please, okay, please continue, sir. Please. Yes, sir. आपके वहाँ पे प्रॉब्लम है सर. तो ये स्पेस टाइम एंड इक्विपमेंट है. जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन एक्चुअली सी चिल्ड्रन, बहुत स्पेस है. तो इन्होंने क्या किया कि बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में सेम इक्विपमेंट दिया. और जब हमने राइट हैंड साइड में देखा तो राइट हैंड साइड में बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और स्पेस बहुत कम है. तो इसीलिए हमने उसको देखा कि बच्चे कम स्पेस में ये कर रहे हैं. सेम इक्विपमेंट यू हर हम फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ में एंगेज कर पाए. तो हम फ्री क्लास और स्ट्रक्चर्ड क्लास में कैसे बच्चों को एंगेज करें. तो ये एक एग्जांपल है लेफ्ट हैंड साइड में केंद्रीय विद्यालय के हैं, जिसमें उन्होंने पेड़ के छोटे छोटे लॉग्स को लगा दिया. कोई खर्चा नहीं है उसमें थोड़ी सी झूले लगा दिए. बच्चे अपने आप ही कर रहे हैं सब कुछ. नो नीड ऑफ अगर हम इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से करें तो किस तरह anyway, तो बेसिकली यू कैन से दैट पार्ट ऑफ ए फिजिकल एजुकेशन की जो करिकुलम है, अगर हम फ्री प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले को करें तो हम उसमें हर बच्चे को एंगेज करना बहुत जरूरी है. अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें ये करते हैं कि जैसे छोटे छोटे स्पेस में क्रिकेट फुटबॉल बहुत पॉपुलर है बिकॉज ऑफ स्मॉल स्पेसेस. तो फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉपस्कॉच, वॉलीबॉल, लैक्रोस, खो खो, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है. सिंपल गेम्स, रन्स, चेसेस, ये सारे छोटे स्पेस में कर सकते हैं. तो इम्पोर्टेंट है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे अगर बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, आप उसको छोटे छोटे स्पेस में उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर हम फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी और फुटबॉल के 2-3 ग्राउंड्स कर सकते हैं. वॉलीबॉल कर सकते हैं, उसके अंदर एथलेटिक ट्रैक हो सकता है, उसमें लॉन्ग जंप की पिट्स हो सकता है. तो इस तरीके से अगर हम मल्टीपल एक्टिविटीज कर पाए, मल्टीपल स्टेशंस पे करें तो वो इम्पोर्टेंट है.
ये जो है ये देख सकते हैं, एक स्पेस को अलग अलग पार्ट्स में अगर हम लॉजिकली डिवाइडेड है, सो वी कैन एक्चुअली डू डिफरेंट एक्टिविटीज। एज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट हमने देखा। सिमिलरली अगर कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी लोकली अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं हम उनको यूज करें। ये कुछ जैसे ये बॉलिंग कराना है तो ये सिंपल वाटर बॉटल से करें, टेबल्स है तो उसमें टीटी के टेबल बन सकते हैं, रोप से ये कर सकते हैं, बॉल नहीं है तो बॉल भी ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से हॉपस्कॉच का नहीं है तो आप सिंपल रबर से सिंपल मार्किंग हो, तो हमें लो कॉस्ट या नो कॉस्ट के भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स का हम सोचेंगे, लोकली अवेलेबल जो इक्विपमेंट है उसको यूज कर सकते हैं। So broadly, so these are the points which I wanted to talk about. तो इसमें हमने जो डिस्कस किया तो ऑल टीचर्स मस्ट इंक्लूड हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के लिए, उसको बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कीजिए। हमारे पास 2 सेशंस भी होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स विद अदर सब्जेक्ट्स, और ये स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हर किंडरगार्टन मतलब नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का प्रोग्रेसिव करिकुलम होना चाहिए, एंड एडवोकेसी इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास कुछ आइडियाज है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, आप उसको शेयर कीजिए। अगर आपके आइडियाज कुछ अच्छे हैं तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। हमारा जो 10th 12th के आसपास हमारा सेशंस है, 10th और 12th Feb के साथ आसपास on integrating PE with other subjects. So I would love to get some ideas from you and integrate some, and also we will have your names also displayed saying कि किसने contribute किया है। तो आप अपनी lesson plans आप share कर सकते हैं। NCERT का class 1 to 12 का जो भी कोई भी chapter को लीजिए, कोई भी subject का, उसको sports के through कैसे पढ़ाते हैं, you can share. With that, thank you so much. Dara sir, you want to add something? Oh, it's a good presentation. It's methodically, it's a very correct, and Sujit sir has present like for the all type of schools, whether it is in a remote area, whether it is in a rural area, urban area, and some questions I have saw, but that part is for Sanjeev sir. Whenever he gives some questions, and this one I am ready to answer with the help of Sujit sir. Yes sir. Sanjeev sir, over to you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. So the session was so informative and wonderful also, with the videos, especially the points like smart goals, then creativity, sir. Within the limits also, we can utilize, we can get a maximum benefit also within limited resources also. You show that how to utilize the limited resources also. With the creativity things, we can develop a lot of things. And within a long-term plans, the schedules, what you have shown, so wonderful it is. I felt that it is a most required thing for our teachers also, those who work at the bottom level, so they can plan those activities very well, sir. Most of things they don't have any doubts also concerned to this session, but still 1 or 2 questions I want to, sir. Actually, can I ask this question? Yeah. Yes, sir. Hello. Yes, sir. 2 questions are there, sir. So especially, plan, everything is what you said correct. How to motivate this one in the community, especially the parents or teachers, their focus is different. So how we can motivate these things? Hello. Dara sir, you want to take the question? Okay. The motivation is that you have to give some attractions. First, you have to make understand the people surrounding you, or the parents or the students, that how much fitness and health is important nowadays, means in the present scenario also.
This is the present scenario also, and there is no cost if you do some physical exercise, physical activities, any sports. Without any cost, you are getting so many good medicines also. That is called sports medicines you are getting. So you have to motivate this, make them understand that how much it is important. Your lifestyle with the sports is to be more important. Rather, you are sitting in the room and watching the TV and playing mobile games in the room. So you come out the ground, but you have to give us some demo also. You have to give an idle demonstration also sometimes. That is free of cost. First, you just attract these people are surrounding you. That is the parents, students, whoever in the societies are there. That attractions must be there. That is like Sujit sir. He's doing so many presentations and so many demos also in the number of schools, so that they are to be attracted with innovative programs. You have to give some innovations also. So this is the main attraction. That is, your innovation is more important rather you are getting from other sides. Thank you. Thank you, sir. What you have said so correct. It is exactly you have touched the heart, because Yes. creativity is the only means that which helps to invent a lot of things. Even though there is a scarcity, a lot of things can be invented, utilized, and a proper management can be done. Yes, sir. Same sort of questions once again by Anand Kumar. He says that so many challenges we have to face in the rural areas, the equipments, what all which is showed. How to manage in rural areas where strength is also more, but scarcity is so much. But one thing is, I accept that policy is also a matter, policies. Apart from that, can we have any solutions where we can solve the problems which are faced by rural areas, especially concerned with an equipments? सर, उसका मेरे को एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ. ये जो इक्विपमेंट मैंने आपको बात किया, ये इक्विपमेंट अगर हम ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की बात करें, the cost of this equipment is not much. For a school of 500, for about 700 to 900 students, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, roughly the cost is about 50 to 60,000 rupees. 50 से 60,000 रुपए अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 2-3 साल आपका आराम से काफी हो जाएगा उसमें. ये जो इक्विपमेंट्स आपको मैंने काफी दिखाया, 50 to 60,000 is what you need if you want to. ये अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको एक दो चीजें मैं बताता हूँ. एक तो आप काफी सारे कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं उस इक्विपमेंट से. कुछ चीजें आप, जैसे मैंने आपको ड्राइंग बताया कि अगर आप ग्राउंड में पेंट कर देते हैं तो आपका एजिलिटी लैडर की जरूरत नहीं होगी. अगर आप जो कोन्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन है, तो आप मार्कर्स और कोन्स का आप लोकली अवेलेबल है. अगर ये एक है समग्र शिक्षा का अंदर स्कूल्स को अगर आप अप्लाई करेंगे, स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल से वो अप्लाई करेंगे तो उनको 25,000, 50,000 और 70,000 के बीच का इक्विपमेंट उनको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी है. तो हर कोई उसको देखे, समग्र शिक्षा को देखे, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो फ्री इक्विपमेंट भी उनको मिल सकता है. अगर वो नहीं होता है तो जैसे मैंने बता रहा था कि आप उसको लोकली अवेलेबल इक्विपमेंट्स का यूज कीजिए. जो इम्पोर्टेंट जो आपको नहीं मिलता आप खरीदिए. जो मिलता है, जो जैसे अगर आप ग्राउंड में मार्किंग कर दिया, आपने जमीन में मार्किंग कर दिया, या लोकली कुछ इक्विपमेंट को आप यूज कर रहे हैं, बाकी चीज को खरीदिए. तो 50-60,000 रुपए का आपको 3 साल के इन्वेस्टमेंट है, तो इट्स नॉट अ मेजर इन्वेस्टमेंट. ये देखने में बहुत एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन है नहीं इतना एक्सपेंसिव. Thank you, sir. Sir, Dara sir, any opinion? Yes, sir. That is the ways and means of improvisations. That one PAC program, Sujit sir has shown in the slide PAC program. The total cost of that kit of that PAC program is 2,000. It's not more than 2,000. Means all the primary sections can be involved with small kit. So many games are there in PAC programs. That is very easily available in the market. Market में available. It is a cost. Total cost is a bag आता है, bag 2,000 rupees का bag आता. So many small equipments are there, so that primary section motor skill develop करने के लिए बहुत अच्छे equipments उसमें. It's not more cost. Thank you. Thank you, sir. Sir, questions are limited.
So I like to conclude this one. Finally, sir, Dara sir, you have a great experience as a In physical schools. education. Yes, sir. Yeah. So we are grateful that you are there with us today also. Thank you. Thank you. Participants, I want to tell that sir is very good in the taxonomy. He is very interested in psychological aspects, internal, personal skills. Especially, he is a great expert in this field. So I'm expecting, sir, any opinions towards this session? Yes. So, session was very nice. And what Sujit sir, he is the only resource person for me to introduce myself in this one side program. So thanks to the Yes. Sujit sir also, and thanks to Sanjeev sir also, Thanks. who is coordinating so nicely and smoothly, sir. And thanks to the Sai whole team, Sai Sports Authority of India, and thanks to one and all to all peoples. Thank you, sir. And especially Sujit sir is a all-rounder. Sir. He is not only a batsman. Every corner he touches. He's a good in communication, and plus a very resourceful person. Technology-wise, also he is so sound. We are lucky to have a person like Sujit sir in our sessions. So a good social bonding we have now. And sir also today took this session. Yes, I hope I'm really- all that the points what you have explained, sir. So it has a great weightage also. Definitely, this will help our participant to run the school activities very easily, fluently, sir. Wherever scarcities are there, now they are getting some creative ideas how to implement the things. So one promise is that definitely they will utilize all the informations what you have revealed today, sir. Thank you very much, sir. Fathers, third, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Khelo India, Sai LNCP, and behalf of our respected principals, sir, I really thank for valuable presence and valuable presentation on this day, sir. Thank you very much, sir. Dara sir, Thank even you so much, you are sir. there. Thank you. It's a great Thank you. privilege for us to see you, sir, here in this session. Thank you very much, sir. Even last sessions were very beautiful. I really very knowledgeable for me also it is. So thank you very much, sir, for your presence. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, sir. Participants, small information is there for you also. Today evening, 5 o'clock, there will be a session of international speaker, Darling Kluka. She is from USA and she is a PhD holder in physical education. Plus, she is a international volleyball player, and she is a vice president, International Council of Sports and Physical Education. So I request all the participants to be there for this session. She is going to take a topic on how can we promote the community sports globally. So this is also a beautiful topic. I request all the participants to be there in this session. And one information that because tomorrow will be 26th January, Republic Day for us. We are celebrating this day and there will be no session also. And even on 27th, because of other programs, this particular PE program won't be there. With this information, I'm going to conclude and thank you for your valuable presence in this session. Thank you very much. Thank you. Thank you.